अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, वही है जो किसी भी चीज़ का इरादा फरमाता है और उसे फरमाता है कुन के हो जा, तो वो फ़ौरन हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटर पार्ट 2 of mathematics presented by Harunabad Science College. My name is Muhammad Awais Nasir, and I will mention the you have my actually phone number in WhatsApp group. You can coordinate me over WhatsApp and email. I will mention the email in our WhatsApp group. So let us start the discussion of our topic. The name of our first unit is functions and limits. तो हमारे चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट. सो concept of function was defined by the Leibniz first time. He stated that the one second, can you see over here? Function concept of function was defined by the Leibniz, and he says that the dependence of one variable to another variable, let's say the to describe the dependence of one quantity to another quantity is called a function. For example, here we have the area of a square depends upon the sides. सो अगर आपकी साइडों की लेंथ बड़ी या कम है तो उसका एरिया उस पर डिपेंड करेगा. एंड वी हैव वॉल्यूम of a cylinder, which is depends on radius. Radius is a constant number. If the radius would be greater, then the volume of the cylinder would be greater. If the radius would be smaller, then the volume of the cylinder will be smaller. So we can see that the volume and area depends upon the lengths. Square depends upon the length of sides and volume depends upon the length of radius. So both quantities are depending quantities on some other quantity. यहाँ पर हमारी डेली लाइफ में हज़ारों एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल एक पेंसिल का चलना. सो पेंसिल अगर लिख रही है तो ये इसका फंक्शन है. इसको डोमेन क्या मिल रही है? उस पेन के अंदर इंक स्याही, उसे डोमेन मिल रही है. सो ये जो लिखने का फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है उस पर, उसके इंक पर. सो द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द फंक्शन is a function is a rule or correspondence relating two sets in such a way that each element in first set corresponds to one and only one element in the second set. So this is let we say, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करना चाहूँगा. Let us consider. So consider a set X with elements 1, 2 and 3 and a set X, and having a set Y with elements A, B and C. So this is a set Y. Function is from X to Y. F is a function from X to Y, where 1 maps on A, 2 maps on C, 3 maps on B. So the image of 1 f of 1 is equals to A. Similarly, f of 2 is equal to C and f of 3 is equal to B. So we can see that. So as we can see that the image of each element of X is unique
in Y. Let me say the definition. Our definition of function is a rule or a correspondence that assigns each element of domain to some unique element in कोडोमेन. इसका मतलब है कि फंक्शन एक इस तरह का असूल है जो कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को मैप करता है कोडोमेन के एलिमेंट्स पर, और डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में यूनिक इमेज बनती है. जैसे यहाँ पर 1 की ए की इमेज है वो है ए, 2 की ए की इमेज है वो है सी, 3 की एक ही इमेज है वो है बी. सो इट डजेंट मैटर कि आप किस तरह से क्रॉसपोंडेंस ले रहे हो. 2 बी पर भी मैप कर सकता है, लाजमी नहीं है किसी पे ही मैप करे. ये कोई जनरल से क्रॉसपोंडेंस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं. इंपॉर्टेंट ये है कि 1 की इमेजेस कितनी है. 1 हैज़ ओनली 1 इमेजेस विच इज़ ए, एंड 2 हैज़ ओनली 1 इमेज विच इज़ सी. एंड यू नीड टू नोट दैट द फर्स्ट सेट which is X is said to be domain, and the second set is said to be codomain. First set is said to be domain and second set is said to be codomain. So in this case हम देख सकते हैं कि 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी, 3 की भी, एंड so on. सबकी एक इमेज है. एक ही नहीं, हर एक की एक इमेज है, मतलब कि हर एक की डिफरेंट इमेज है. ऐसा नहीं है कि डिफरेंट इमेज हो, ऐसा नहीं है कि सबकी डिफरेंट इमेज हो, लाजमी हो, ये मैटर नहीं करता. लेकिन मैटर ये करता है कि हर एलिमेंट की इमेज एक ही हो, एक से ज़्यादा ना हो. फॉर एग्जांपल वी हैव 1, 2 and 3, and here we have only A. Our discussion is 1 is mapped on A, 2 is mapped on A, 3 is mapped on A. So f of 1 is equal to f of. So the image of each element of first set, which is X, is unique in Y. The f of 1 is equal to f of 2 and is equal to f of 3, which is equals to A. So image of each element of domain is A. So it doesn't matter, the image of each element can be A. Actually this is the definition of constant function. A constant function is a function who have only one element in range for each element in domain. डोमेन के हर एलिमेंट के लिए फंक्शन के पास सिर्फ एक ही वैल्यू होगी रेंज में, और दिस इज़ द टाइप ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. यहाँ पर हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि बहुत सारे एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1 की इमेजेस कितनी हैं, है तो एक ही ना, एक ही है ना ए. 2 की कितनी इमेजेस हैं, एक ही है ए. 3 की कितनी इमेजेस हैं, एक ही है ए. सो दीज आर द इमेजेस सेट. यहाँ पर हर एक की एक इमेज है. डेफिनेशन फंक्शन को. लेट वी हैव अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है x जिसके अंदर एलिमेंट मैं रख लेता हूँ. फॉर एग्जांपल 1, 2 and 3, and we have another set with elements a and b. 1 is mapped on a, 2 is mapped on b. F is a function from x to y. So this is not a function because it doesn't satisfy the definition. Our definition says function is a rule that assign each element, here each is important, each element of domain. डोमेन का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 तो किसी पर मैप हुआ ही नहीं. ठीक है, उसने कहा था function is a rule that assign each element of domain to some unique element in codomain. So each element was important. यहाँ पर हर एलिमेंट को मैप होना था. अगर ये 3 भी a या b किसी पर मैप होता है तो ये हमारा फंक्शन बन सकता है, अदरवाइज दिस इज नो मोर अ फंक्शन. दिस इज द रफ एग्जाम्पल फॉर द not function. Here we have another type of not function, which is, for example, we have a set with elements 1, 2 and 3, and which is X domain set, and let we say a Y codomain set which is equal to A and B. Here we have A is mapped on
1 is mapped on A, 2 is mapped on B, 3 is mapped on C, and 2 is also mapped on A. F is a function from x to y. सो दिस इज़ अ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा. डेफिनेशन हमें कहती है फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, जो डोमेन के हर एलिमेंट को तो यूज़ करेगा टू सम यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन, जो कि डोमेन को के हर एलिमेंट को असाइन करेगा कोडोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट. लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस 2 की इमेजेस 2 बार नहीं है. 2A पर भी मैप कर रहा है और 2B पर भी मैप कर रहा है. तो इस सूरत हाल में 2 की इमेजेस 2 बनती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो इसका मतलब दिस इज़ नो मोर अ फंक्शन. सो दिस वाज द रफ स्केच फॉर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन. सो वी नीड टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट थिंग. सो दिस इज द definition. Actually, this is the definition. So this is the definition. Function is a rule or correspondence relating two sets in such a way that each element of first set corresponds to one and one element in the second set. So you can define by this way also. A function from x to y is a rule or correspondence that assigns each element x in x, a unique element y in y is called where set x is called domain and y is called range. Okay, so this is the definition of function. So the notation of function is this one: y is equal to f of x. The notation of function is y is equal to f of x. Here f of x is independent variable and y is dependent variable because area depends on the sides of square, volume depends on the radius. अगर रेडियस आपका छोटा बड़ा होगा तो आपका वॉल्यूम भी छोटा बड़ा होगा. अगर साइडों की लेंथ छोटी बड़ी होंगी तो इसी के लिहाज से आपका एरिया भी छोटा बड़ा होगा. सो वी कैन से दैट the area depends on the sides. So sides are independent and area is dependent function. So if we express a function in some variable, then this variable is said to be independent and the function is said to be dependent. Here y is equal to, he has stated that y is equal to f of x. So y is dependent function and x is independent function. So we can move on to our next page which is stated as functions are often denoted by letters FGH and capital FGH and so on. Here it is a rough definition for a function. He stated that a function is a machine that takes input and gives some output. Is a machine. X is called independent variable and y is called dependent variable. ठीक है. अगर किसी फंक्शन की रेंज सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स हैं तो वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और अगर किसी फंक्शन की रेंजेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वो ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1. डोमेन में आप कोई भी रियल नंबर अगर पुट कर दें तो रिज़ल्ट में आपको एक रियल नंबर मिलेगा. सो दिस इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन, ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. दीज 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस. सो बिकॉज देयर रेंजेस आर रियल. सो आपका जो काम है वो आपने एग्जाम्पल सर्च करनी है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की. आप लोगों ने एटलीस्ट 5 एग्जाम्पलें तो बतानी है जिनकी रेंजेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगी और वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस कहलाएंगे. फर्दर आपने ये भी सर्च करना है कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, हु
presented it? किसने इसे प्रेजेंट किया? और ये जो लास्टली हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसे किसने प्रेजेंट किया? दिस इज़ योर होमवर्क एंड वी कैन मूव. सो I have wrote it over here. The similar thing, the definition, dependence of one variable to another variable is called function. I will denote the word function with this notation fn. So जहाँ पर भी आपको मेरे लेक्चर में fn लिखा नज़र आए तो this is a short notation for function I have used. So मैं हमेशा function के लिए fn को यूज़ करता हूँ. So यहाँ पर वही मैंने एग्जांपल ली है कि एरिया ऑफ अ स्केयर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स. फॉर एग्जांपल ये एक स्केयर है, अगर इसकी एक लेंथ एक्स है तो ऑफ कोर्स स्केयर की डेफिनेशन से हर एक लेंथ एक्स होगी. सो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ. सो लेंथ भी एक्स, विड्थ भी एक्स, सो एक्स क्रॉस एक्स वुड बी ए एक्स स्केयर, where x is independent, also called input, also called domain, element of domain, and a is called dependent, also called output, also called range. So this is the thing. We can move. If you have some questions and queries, you can coordinate me at coordination timings. So here we will define the classification of function. We will classify to obtain the problems, to obtain the solution of problems. We will classify our function in many ways. Some of ones are given, which are by domain, codomain and range, graphical explanation, express form and application. So first of all we will discuss the domain, codomain and range. So in our first year class we have thoroughly studied about the function in writing in the by writing in the context of domain, codomain and range. Here we was studied in our second chapter into function, onto function, one to one function, one into function, one onto function, and the relating things. So we will reassume our discussion to simplify the logics. सबसे पहले हम लोग इनटू फंक्शन को डिस्क्राइब करें तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि रेंज इज़ नॉट रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोडोमेन का सेट y है, ठीक है, और इसके जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं वो ए बी और सी हैं. लेकिन अगर हम लोग फंक्शन अप्लाई करते हैं, दिस इज़ द टाइप ऑफ वन फंक्शन फंक्शन की डेफिनेशन होती है रेंज इज़ नो सबसेट ऑफ कोडोमेन. सो यहाँ पर अगर हम लोग मैथमेटिकली फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट ए इज़ मैप्ड ऑन 1 is mapped on A, 2 is mapped on B and 3 is mapped on B. Here this ordered pair 2b is called ordered pair, where first element is called abscissa and second element is called ordinate. So you need to know it. The first element is called abscissa of ordered pair and second element is called ordinate of this. So the first element of each ordered pair is called domain and the second element of each ordered pair is called the range. So we can easily see that the range set is the subset of codomain. So यहाँ पर रेंज जो है हमारी वो कोडमेन का सबसेट बन रही है, क्योंकि कोडमेन में ए बी और सी है और रेंज में सिर्फ ए और बी है. सो रेंज आपकी बन रही है कोडमेन का सबसेट. सो इस टाइप के फंक्शन को अदरवाइज ये डेफिनेशन पूरी कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन कहते हैं फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इनटू सम यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन. यहाँ पर डोमेन का हर एलिमेंट असाइन हो रहा है और हर एलिमेंट की कोडोमेन में इमेज भी यूनिक बन रही है, विच वाज द रिक्वायरमेंट. सो इट फुलफिल्स. So it is a function and this is this is into function. So this is the type of into function. Definition I have described. Range is a subset of codomain. So now we can move onto another type is called onto or surjective function.
the definition of this function is defined as the range is equal to code main. Range is equal to code main. Set of range is equal to set of code main. Here code main is equal to a over b, and we can see that the range is equal to a over b, which is equal to code main. So by definition, if a function has range is equal to code main, then the function is said to be onto or surjective function. So this was another type of function. If you have some problems or queries, you can coordinate me at coordination timings. Here I have mentioned another type of function which is named as one function or injective function. इसे वन भी बोलते हैं और इंजेक्टिव भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे वन टू वन भी बोलते हैं. So it doesn't matter. So the definition, the image and pre-image of elements are unique. यहाँ पर लिखना चाहिए था द इमेज एंड प्री इमेज ऑफ ईच एलिमेंट आर यूनिक, के डोमेन के हर एलिमेंट की को डोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए. ए की एक इमेज बन रही है, बी की दूसरी इमेज बन रही है, सी की. एक्चुअली दिस इज द थिंग टू से दैट इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, then f of x1 must not equal to f of x2. So f of x2, अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस भी आपस में इक्वल नहीं होंगे. एंड if x1 is equal to x2, अगर x1 x2 के इक्वल है तो इसका मतलब है f of x1 मस्ट बी इक्वल टू f of x2. अगर दो एलिमेंट्स सेम हैं, इक्वल हैं, तो उनकी इमेजेस भी इक्वल होंगी. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन. सो वी नीड टू फॉलो द डेफिनेशन एंड सम रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पर मैंने जो फंक्शन बनाया ये एक 1 इंटू फंक्शन है, क्योंकि इंटू की भी कंडीशन होल्ड कर रहा है, कोड में रेंज के इक्वल नहीं है, और 1 की भी कंडीशन होल्ड कर रहा है. सो दिस इज़ 1 इंटू, वी कैन से इट 1 एंड इंटू फंक्शन. This is another type I have not mentioned in this lecture, 1 and into, so you need to know by on your own. So another and last thing in domain and codomain is 1 and onto, which is also called bijective function. A function is said to be 1 and onto if it is 1 and onto both. अगर वो 1 भी है और both भी है. 1 की कंडीशन क्या है कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इमेजेस भी मुख्तलिफ होनी चाहिए, दो सेम एलिमेंट्स की इमेजेस भी सेम होनी चाहिए. ठीक है, अगर 1 डिफरेंट है 2 से तो 1 की इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए 2 की इमेज से. सो दिस इज़ द थिंग, इट फॉलोज दैट कंडीशन विच इज़ वेरी वेरी राइट. सो फर्स्ट कंडीशन ट्रू ऑफ 1 function. So we will now move on to our second condition onto function. The condition of onto function was domain is equal, the range is equal to codomain. Here we can say that the image of 1, f of 1 is equal to b, f of 2 is equal to a, f of 3 is equal to c. So each element has image which is equal to, so the pre-image set is abc, which is range, एंड इक्वल टू कोडमेन. अगर कोई सेट की रेंज को आपने चेक करना है कोडमेन के इक्वल है या नहीं, तो आप लोग देख लें कि कोडमेन का अगर तो हर एक एलिमेंट मैप हो रहा है, वो प्री इमेज बना रहा है और यूनिक ही बना रहा है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बना रहा, तो फिर ये एक ऑन टू फंक्शन होगा. सो इट इज़ क्लियर दैट दिस फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन. 1 and onto function. So we will say that this is a bijective function. In our further studies we will study mostly the bijective function. हम लोग ज़्यादा bijective function को ही डिस्कस करेंगे, बकाया फंक्शंस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि इन्वर्स के बारे में पूछना चाहूँगा कि इन फंक्शंस में से इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है. इनटू फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ऑनटू का करता है या फिर नहीं करता. ठीक है, या फिर इन सब में से किसका करता है या फिर सभी का करता है. तो दिस इज़ योर होमवर्क असाइनमेंट, सो यू नीड टू नो अबाउट इट. सो वी विल मूव.
we will move into our next discussion is graphs of algebraic function. So I have stated the graphical explanation. So in the graphical explanation we have two tests to check the function and in its inverse. हमारे पास दो टेस्ट हैं चेक करने के लिए फंक्शन को और इन्वर्स को कि ये फंक्शन है या नहीं और इनके इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे. So first of all we have horizontal line test. फंक्शन का ग्राफ आपको मिल जाए, जैसे ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ है, एक पैराबोला, इसे बोलते हैं पैराबोला. सो ये ग्राफ है. अगर इस ग्राफ पर आप जितनी मर्जी वर्टिकल लाइंस ड्रा कर लें, अगर हर लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट या टच करती है, सो दिस इज़ अ फंक्शन. अगर जितनी मर्जी आप ड्रा कर लें तो हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन के हर हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट या टच कर रही है. सो दिस इज़ अ फंक्शन. ऐसा फंक्शन का ग्राफ जिस पर हर हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करे वो फंक्शन होगा. लेकिन व्हाट अबाउट सर्कल? Circle is a function which gives us x square plus y square is equal to a square. The equation of the circle is x square plus y square is equal to a square. A circle. If we draw some horizontal lines, then we can see that every horizontal line cuts the graph of circle at 2 points. So this does not hold true for the horizontal line test. So circle is not a function. We cannot say that. अगर horizontal line test ही पास, कोई function का ग्राफ horizontal line test पास करता है तो ही वो function होगा, otherwise it will be no more a function. So if you have some questions and queries you can ask. We will move on to our next topic is vertical line test. अगर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारी बुक में हमें स्टेट नहीं किया गया, हमें नहीं बताया गया, कहीं आपको शायद बुक में ना मिले, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है. हमें एक्चुअली सोचना चाहिए डिफरेंट वे से. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मिल सकता है हमें, तो क्या कोई वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होगा? तो मैंने इस पर थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि जी वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट a test for the function but is a test for inverse function. ये टेस्ट है कि इसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. अगर कोई फंक्शन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. सो अगर तो किसी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रा करने में कामयाब हो जाओ और उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, अगर हर हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही हो या टच कर रही हो, तो फिर तो फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल है. अदरवाइज द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. सो हेयर आई हैव अ क्वेश्चन आई विल मेंशन ओवर हेयर. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. The graph of sin x, the graph of sin x is like this. ठीक है. सो साइन का ग्राफ इस तरह का होता है. साइन एक फंक्शन है क्योंकि हर वर्टिकल लाइन टेस्ट को ये फॉलो करता है. सो हम लोगों ने इन्वर्स भी पढ़ा है. व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के मुतल्लिक़ क्या? हॉरिजॉन्टल हम लोग जानते हैं कि साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये एक इन्वर्स फंक्शन होल्ड करता है. लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो ये तो फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है. अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इस फंक्शन पे लगाते हैं, इस फंक्शन पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाते हैं तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहे हैं. सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग साइन का इन्वर्स पढ़ते हैं, को हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ते हैं हम लोग. सो व्हाट अबाउट दिस? सो आप लोगों ने सर्च करनी है, आप लोगों से ये असाइनमेंट है कि आपने बताना है कि ऐसी क्या कंडीशन है कि साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल करता है,
तब भी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो इसकी क्या वजह है और बिहाइंड द इसके क्या रीज़न है। सो यू कैन फॉलो योर बुक दैट यहाँ पर उन्होंने सिर्फ वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि एक फंक्शन लो आप, उन्होंने कहा है कि आप एक फंक्शन लो, उसका ग्राफ ड्रा कर लो। अगर ग्राफ पर एक वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन है। जैसा कि ये फंक्शन नहीं है, उन्होंने लिख दिया नॉट अ फंक्शन। ये भी एक फंक्शन नहीं है, सर्कल एक फंक्शन नहीं है। यहाँ पर ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, उसने बोला फंक्शन। यहाँ पर ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, उसने बोला फंक्शन। लेकिन यहाँ पर फंक्शन नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग, this is the graphical explanation, so you need to know about it. Next, our discussion is about by application. किसी भी फंक्शन को बाय एप्लीकेशन भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। हम लोग एप्लीकेशन में इसे 3 तरह में अज्यूम कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से दैट a function is expressed in algebraic ways. A function is expressed in circular ways and function is expressed in transcendental ways. हम लोग इसे अलजेब्रिक तरीके से भी इजहार कर सकते हैं, सर्कुलर से भी और ट्रांसेंडेंटल से भी। यहाँ पर अलजेब्रिक की फर्दर 3 टाइप्स हैं। अलजेब्रिक में हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन डिस्कस करते हैं, रूट फंक्शंस डिस्कस करते हैं एंड रैशनल फंक्शंस डिस्कस करते हैं। पोलिनोमियल की भी आगे हज़ारों टाइप्स हैं। अगर फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है तो उसे लीनियर बोलते हैं, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 डिग्री पोलिनोमियल है तो उसे क्यूबिक बोलेंगे, n डिग्री पोलिनोमियल है तो उसे nth पोलिनोमियल बोलेंगे। सो वन टाइप इज़ पोलिनोमियल फंक्शन। एंड हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस बी। So ax plus b is a function of line, so which is linear function. एंड हम लोगों ने छोटी क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशनें पढ़ी, वहाँ पर हम लोगों ने सॉल्यूशंस उनके फाइंड किए, दैट वाज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। हम लोगों ने क्यूबिक पढ़ी, सो दैट वाज द क्यूबिक फंक्शन। इसके बाद पोलिनोमियल में हम लोग हर डिग्री की पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, n डिग्री तक। n कोई भी नंबर हो सकता है, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 2000, इट कुड बी 15,000, सो इट कुड बी एनीथिंग बट अ फाइनाइट रियल नंबर, sorry, but a finite integer. We cannot say n is real number. N could not be a real number because every rational and irrational are also real number, but rational and irrational are not integers, so n must be integer. That is the condition for n. So we need to move on. The next टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन इज़ कॉल्ड रूट फंक्शन। रूट में हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, क्यूब रूट पढ़ते हैं और nth रूट्स वगैरह पढ़ते हैं। हम लोग ने स्क्वायर रूट से मुतल्लिक बहुत से क्वेश्चन हल किए, क्यूब रूट से मुतल्लिक किए और nth रूट से मुतल्लिक बहुत सारे क्वेश्चन हल किए। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ रूट फंक्शन। हेयर इज़ एन अदर टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन इज़ कॉल्ड रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी थी। सो पार्शियल फ्रैक्शन में आपने 2 टाइप्स पढ़ी थी, आपने रैशनल फंक्शन पढ़े थे। रैशनल में आपने 2 टाइप्स पढ़ी थी, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। सो दीज बोथ आर द टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आर बोथ आर द टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन। Similarly, if I want to show you our discussion, we are studying over here algebraic function. Let's say algebraic function, इसमें फर्स्ट टाइप है पोलिनोमियल फंक्शन, which could be linear, quadratic, nth डिग्री, कुछ भी हो सकता है।